Hello friends, this is Shivam Dubey from English Kingdom, Katra Prayagraj. Welcome to the class. We are continue with Narlikar and learning his story, the adventure. And in our previous class we could discuss that this story of Narlikar is actually a fictional piece that he tried to base it on history, and along with history he has an effort to link it with present situation as well. So today we will try to complete this one, and would like to say good morning to every one of you. And as I told you, before we start the class, we go through the question session from the former classes that I have taught you here in the class. And in our previous classes, we could cover some of the poems and some of the stories. And you will have to give something that's related to even the biography of the writers. So wherever possible, we are trying to share it with you all and expecting you guys going through these lessons very carefully. Yes, it's so very cold here these days, and you need to be very careful towards your study and towards your physique both, because you know only a fit body can go with a fit mind, and you need to keep both going all together, because you cannot stop your learning and you cannot stop keeping your body fit. So both you will have to pay attention. So as you see that the class is completely free for every one of you, and those who are interested, they are coming and being the part of our group on Telegram, and many of you are coming here, and that's nice to see you all coming and working together. So anyone who wants to be a regular learner of KVS PGT free classes, and where we are trying to complete the whole English syllabus. Remember, not the next parts, it's just English syllabus with grammar and literature we are going with, and here in the beginning we are continue with the literature, and very soon we will continue with the grammar as well. So that's the effort we are trying to pay to complete the whole syllabus. So it's completely free. In our previous class I told you that there is a public playlist of KVS PGT English 2022 on our Telegram, on our YouTube channel, and that is English Kingdom. So simply you can go there and see all the classes, and a much better option is there to be the part of our Telegram group, where simply you will have to message us on our Telegram number 9369542072, and there you will message with your name and the course you want to join in, and simply we will include you in our free KVS PGT class. Remember, KVS PGT class is a free, TGT is not free, TGT is also running. So those who want to be the part of TGT class, they need to pay something. And we have to move to the question session, and after that we'll come to the adventures of Narlikar. Okay, going with the first question of the day here. When did Howard Carter go for the examination of the mummy of Tut? When did Howard Carter go for the observation or examination of the mummy of Tut? Okay, and we see the answers there on the screen. Good morning, Atul. Nice to see you there. And I think Shivam, very long time since we saw each other, even live. Nice to see you here on the screen. Okay, coming with the answers. And the answer starts with the reply of Sachin, and followed by Pradeep and Kalpana, Vinita. They have all answered it correct. And the right answer is 1922. Exactly. In 1922, it was Howard Carter who for the first time observed the mummy of Tut. Going with the next.
Which country did the forefather of Tut ruled? Which country did the forefather of Tut ruled? Okay, and we have the answers there on the screen. That comes here from Sachin, followed by Kalpana, Vinita, Pradeep. They have answered it correct, and the right answer is Egypt. Okay, that's a nice one. What's the name of the protagonist of the story, The Adventure by Narlikar? What's the name of the protagonist of the story, The Adventure by Narlikar? The name of the protagonist of the story, The Adventure by Narlikar. And we have the answer there on the screen. Coming from Gyaneshwar, is followed by Sachin. Good morning, Gyaneshwar. And Kalpana, Pradeep, they have answered it correct. And the right answer is Professor Gaytonde, and the complete name was Gangadhar Pant Gaytonde. Professor Gangadhar Pant Gaytonde, that came from Gyaneshwar. Nice effort, Gyaneshwar. Going with the next question. What was the name of the writer who wrote the story, The Portrait of a Lady? What's the name of the author who wrote the story, The Portrait of a Lady? Well, and now the answers are there on the screen from Gyaneshwar, followed by Vinita, Sachin, Kalpana. They have all answered it correct, and that is, it's the Khushwant Singh, the man who wrote the story, The Portrait of a Lady. Okay. Next, we lifted her off the bed. We lifted her off the bed. Whom this word of addressed to from the story, The Portrait of Lady. We lifted her off the bed. Whom did the story, The Portrait of Lady, has addressation with the word of, with. Whom did the word her address from the story, The Portrait of Lady, in the line, we lifted her off the bed? And we have the answer on the screen from Kalpana, OK Gyaneshwar, Vinita, Pradeep, good morning Vansha, OK Sachin, that's a nice one. Exactly, the word her is used for the grandmother of the narrator, as we see that here is actually, no doubt, Lakshmi Devi is inspiration behind the character that he could portray as the grandmother here in the lesson. But we cannot direct answer it to be Lakshmi Devi. Actually, we can simply answer the word her addressed to the grandmother of the narrator. Okay, so it's simply the grandmother of the narrator, whom the word her has been addressed in the line, we lifted her off the bed. Okay, now I'll move with the next question. Which poem, how many stanzas are there in the poem, A Photograph? How many stanzas are there in the poem, A Photograph? Okay, and we have some answers that on the screen
Oh, no, no, Kalpana, not that. Good morning, Meera. Hope you're well. No, Gyaneshwar, that's not. So just one right answer is from Sachin, and now Kalpana follows her. So right answer is three stanza that had been used in the poem A Photograph by Kathleen Shirley Tolson. And we go with the next. Which work has the line? Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. I repeat. Which work has the line? Now she has been dead nearly as many as years as that girl lived. I repeat. Which work has the line? Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. And we have the answer there on the screen. No, Pradeep bhai, check it. So right answer is no, Kalpana. Right answer is from Gyaneshwar, and he is followed by Sachin, Vinita. Okay, they have all answered it correct. And the right answer is A Photograph, that is the line from the last stanza, third stanza. What's the time setting of the story We Are Not Afraid to Die by Gordon Cook and Ellen East? What is the time setting of the story We Are Not Afraid to Die by Gordon Cook and Ellen East? Time setting of the story, and we have some answers there on the screen. So, well, it is July 1976, that's the answer from Gyaneshwar, followed by Sachin, Vinita, that's not a very perfect one, Kalpana, Pradeep, that they have answered it perfect. And the right answer is, it was July 1976 as the time setting of the story We Are Not Afraid to Die. Going with the next, what's the name of the man whom the narrator includes in his crew from Switzerland? What's the name of the man whom the narrator includes in his crew from Switzerland in the story We Are Not Afraid to Die? See, when the narrator reached Cape Town, South Africa, he included two crewmen, those who were actually experienced, and wanted them to be the part of this world exploring voyage of his, and included one from America, that was Larry Vigil, and we have the answers here on the screen from Gyaneshwar, is followed by Sachin, Kalpana, Vinita, and the right answer is Herb Seigler. Exactly, it's the Herb Seigler who was from Switzerland and was included in the crew of the narrator in Cape Town. Okay, what's the name of the boat that the narrator voyaged in the story We Are Not Afraid to Die? What was the name of the boat that the narrator took for his world voyage in the story We Are Not Afraid to Die? And we have the answers on the screen from Sachin, followed by Gyaneshwar, Vinita, Kalpana, Pradeep. They have answered it correct. And the right answer is Wave Walker. Exactly. Wave Walker is the name of the boat that was owned by the narrator for his world voyage. Going with the next. Who is the Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities? I repeat. Who is the Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities from Tut, Discovering Tut, the saga continues. Who is the Secretary General of Egypt's
Supreme Council of Antiquities, and we have the answers there on the screen, starting with the reply of Gyaneshwar, is followed by Sachin, Kalpana, Vinita, Pradeep. They have all answered it correct. And the right answer is Zahi Hawass. Exactly, it's Zahi Hawass, who was the Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities. Okay, we'll go to the next. Which fan helped to clean the fan of the CT scan when portable CT scan was to scan the TET's body? What's the name of which fan helped Zahi Hawass and company to clean the dust from the CT scan cooler fan when they were trying to CT scan the body of TET from the story Discovering TET saga continues. Which fan helped Zahi Hawass and the company to clean the fan of CT scan? And we have no answer. Actually, that was plastic fan. It was plastic fan that was used to clean the fan of the CT scan cooler. Going with the next. Why did laburnum subsides to empty? Why did laburnum subsides to empty? The poem, The Laburnum Top of Ted Hughes, ends with the line, the laburnum subsides to empty. Why is this expression? Means what does it mean? Give the meaning of the line from the laburnum top, that is the laburnum subsides to empty. What does it mean? Come on. What does it mean? The laburnum subsides to empty. That's the question you need to answer carefully. I'm waiting for a reply. The laburnum subsides to empty. What does it mean from the poem, The Laburnum Top of Ted Hughes? Well, okay. That's nice effort, Gyaneshwar. Okay, Sachin, good effort. Exactly, the goldfinch bird that actually filled the tree laburnum top with the life and beauty and sport. When the bird flew away, the tree is again in its loneliness, and that means that the tree actually subsides, again goes to his own world. In the beginning, we see that it was that loneliness, and again by the end we see the same loneliness, and because of that loneliness, the tree subsides to its empty world, because without accompaniment of the goldfinch, the tree laburnum felt lonely, and that's why the expression. Good morning, Nidhi. Now I'll move with the last question of the day, and that is, when was the voice of the rain included to the leaves of grass? When was, this is going to be the last question, when was the voice of the rain included
to the leaves of grass collection. You will have to tell when was the leaves of grass. The poem, The Voice of the Rain. Vinita, try to understand. My question is, in 1855, the Leaves of Grass for the first time was published, and The Voice of the Rain was not written. Voice of the Rain, as you see, was written. Kalpana, what are you doing? Don't be bland. The Voice of the Rain was written actually, okay Sachin, but that's not the exact timing, in 1885. So the poem that was written in 1885, how can it be included in 1855 collection of Leaves of Grass? So my question is, when was the poem The Voice of the Rain included in the edition of Leaves of Grass? So simple, very simple one. In 1881, 82, the 7th edition of Leaves of Grass appeared, and in 1888, 89, the 8th edition of Leaves of Grass appeared. So very natural. In 1885, the poem The Voice of the Rain was composed, and resultantly, you can very simply say that in the 8th edition of the Leaves of Grass is what it was included. So it was 8th edition of the Leaves of Grass that The Voice of the Rain, a poem from 1885 from Walt Whitman, included in the collection. Okay, and now we'll move to the next, and that would be the part of the story that we were continue with Professor Gaitonde and Khan Sahib. They were discussing about their journey, and ultimately it's the Kalyan station where the narrator Gaitonde reached and alighted. He had his own wish to visit. The scenery of the place seems to be reminding him the year of 1857. God bless you, Dev Narayan. And that is actually the time when India started the struggle for its freedom, and the narrator wants to relate this story with that struggle for freedom. Okay, so here we go with the next text, but be very careful. If you don't go through the proper revision, it will be actually tough, क्योंकि आपके पास बहुत सिलेबस तो नहीं है, बट वैरायटी ऑफ सिलेबस है, और अगर आप एक्चुअल में अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हैं रिवीजन करने को या साथ साथ पढ़ने को, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी. इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी आपके पास समय है उस समय में आप इसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए, टच करने की कोशिश करिए. जो चीज़ें ज़्यादा नहीं हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि वैरायटी बहुत है, सिमिलरिटी आपको नहीं मिलेगी, और अगर आप इनको टच नहीं करते रहेंगे तो दिक्कत होगी आपको. तो रेगुलर टच में बने रहिए, रेगुलर इसको स्टडी करते रहिए. चलिए, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से लॉयड की ऑफिस, बर्कले की ऑफिस और प्रोफेसर गायतोंडे को तो ऐसा लगता है जैसे वो इंग्लैंड में पहुंच गए हैं, क्योंकि बॉम्बे का जो ये सीन है वो इंडिया का सीन लग ही नहीं रहा है. चलिए अब आगे देखते हैं. ही टर्न्ड राइट अलोंग होम स्ट्रीट. होम स्ट्रीट से होते हुए राइट की तरफ मुड़ते हैं. एंटर फोर्ब्स बिल्डिंग, और वहां पर उनका प्रवेश होता है फोर्ब्स की बिल्डिंग में. फोर्ब्स बिल्डिंग आपको लगभग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो याद रखने पड़ेंगे हर स्टोरी से, हर वर्क से. और फोर्ब्स बिल्डिंग में एंटर करते हैं. आई विश टू मीट मिस्टर विनय गायतोंडे प्लीज. वहां पर वो जाकर के
मिस्टर विनय गायतोंडे से मिलना चाहते हैं एंड वहां पर उन्होंने इस विश को जाहिर किया कि ही वांट्स टू मीट विनय गायतोंडे। ही सेड टू द ब्रिटिश रिसेप्शनिस्ट, उन्होंने ये बात ब्रिटिश रिसेप्शनिस्ट को कही। शी सर्च्ड थ्रू द टेलीफोन लिस्ट, उन्होंने पूरे टेलीफोन लिस्ट में सर्च किया रिसेप्शनिस्ट ने। द स्टाफ लिस्ट, फिर उन्होंने स्टाफ लिस्ट को सर्च किया। एंड देन थ्रू द डायरेक्टरी ऑफ एम्प्लॉयज, फिर जो एम्प्लॉयज का डायरेक्टरी बना हुआ था उसको सर्च किया। ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ द फर्म, और जो फर्म की जितनी भी फर्म्स थी उनकी जितने भी ब्रांचेस थे, जितने भी एम्प्लॉयज थे, सबको उन्होंने सर्च किया। शी शूक हर हेड एंड सेड, उन्होंने अपना सर इस तरह से हिलाया और कहा, आई एम अफ्रेड आई कांट फाइंड एनी वन ऑफ दैट नेम ईदर हियर और एनी ऑफ आवर ब्रांचेस। कहा कि अफसोस है हमें, हम नहीं पा रहे हैं किसी को भी इस नाम से, ना तो अपने यहां पा रहे हैं और ना ही किसी और ब्रांचेस में पा रहे हैं। आर यू श्योर ही वर्क्स हियर, तो क्या ये आप निश्चित हैं कि विनय गायतोंडे वर्क हियर? दिस वॉज अ ब्लो, एक्चुअली ये बड़ी बात थी, नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से इसका उम्मीद तो किया ही नहीं था। इफ ही हिमसेल्फ वर डेड इन दिस वर्ल्ड, व्हाट गारंटी हैड ही दैट हिज सन वुड बी अलाइव? अगर वो खुद भी इस दुनिया में खत्म हो सकते हैं तो क्या गारंटी है कि उनका बेटा अभी ये जिंदा होगा? Indeed, he may not even have been born. और सच कहें तो लगता है जैसे वो पैदा भी नहीं हुआ है। He thanked the girl politely, बड़े प्यार से उन्होंने गर्ल को थैंक कहा and came out, और वहां से बाहर निकल आया। It was characteristics of him not to worry about where he would stay. ये तो उनका अपना कैरेक्टरिस्टिक्स था, उनकी अपनी एक खास पहचान थी कि वो कभी भी वरीड होते ही नहीं थे, कभी वो चिंतित होते ही नहीं थे कि एक्चुअल में उन्हें कहां पर स्टे करना है, कहां पर ठहरना है। His main concern was to make his way to the library of Asiatic Society. वो एक्चुअली उनका जो मेन कंसर्न था, उनकी जो मेन सोच थी वो थी कि वो जाना चाहते थे एशियाटिक सोसाइटी के पास। एशियाटिक सोसाइटी की वहां पर एक लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी में वो जाना चाहते थे। सीम्स विनय गायतोंडे टू बी द सन ऑफ प्रोफेसर गायतोंडे। तो वो उनका मेन कंसर्न जो था, वो कंसर्न ये तो था नहीं कि कहां रुकेंगे, लेकिन मेन कंसर्न उनका ये हो गया था कि उनको किसी भी तरह से जो एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी को जाना था। टू सॉल्व द रिडल ऑफ हिस्ट्री, ताकि वहां जाकर के वो जो हिस्ट्री कितनी बड़ी रिडल है, इतनी बड़ी पहेली है, उस पहेली को वो सॉल्व कर सकें, उसको क्लियर कर सकें। ग्रैबिंग अ क्विक लंच एट अ रेस्टोरेंट, उन्होंने जल्दी जल्दी एक रेस्टोरेंट में अपना लंच किया। एंड ही मेड हिज वे टू द टाउन हॉल, और वहां से वो अपने लिए टाउन हॉल का रास्ता तय करते हैं। मीन्स यहां पर एक और आपको लैंडमार्क याद रखना पड़ेगा कि ये पहला पार्ट है जहां पर हम कंप्लीट करते हैं। तो प्रोफेसर गायतोंडे का मेन कंसर्न एशियाटिक सोसाइटी है, क्योंकि उनको लगता है हिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम है, वहां वो जाकर सॉल्व करेंगे। और टाउन हॉल से होते हुए आगे जाने की कोशिश करते हैं। विनय गायतोंडे को उन्होंने फोर्ब्स बिल्डिंग में खोजने की कोशिश की, जो पॉसिबल है उनके सन के रूप में यहां पर प्रेजेंट किए गए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। यस टू हिज रिलीफ द टाउन हॉल वॉज देयर। यह अच्छी बात थी कि उनके सुकून के लिए अच्छी बात थी कि उनको वहां पर टाउन हॉल मिल जाता है। एंड इट डिड हाउस दी लाइब्रेरी, और अच्छी बात यह भी थी कि टाउन हॉल में ही लाइब्रेरी भी थी इस बिल्डिंग में। He entered the reading room, वो रीडिंग रूम में प्रवेश करते हैं। and asked for a list of history books including his own, और वहां पर वो ढेर सारी किताबों को मांगते हैं जो हिस्ट्री पर लिखी गई होती हैं, और क्योंकि वो खुद भी हिस्ट्री को राइट करते थे तो अपनी किताब भी उन्होंने मांग लिया। His 5 volumes duly arrived on his table,
उनके पास टेबल के पास 5 वॉल्यूम की किताबें आ जाती हैं। He started from the beginning, उन्होंने शुरू से पढ़ना शुरू किया। वॉल्यूम 1 took the history up to the period of अशोका। पहले वॉल्यूम में, चूंकि लाइब्रेरी में पहुंचने के बाद उनके पास 5 वॉल्यूम्स की बुक आ जाती है और इन 5 वॉल्यूम्स को 1 by 1 वो स्टडी करते हैं। वॉल्यूम फर्स्ट जो ड्यूरेशन लेती है अशोका द ग्रेट तक के टाइम को कवर करती है। फर्स्ट वॉल्यूम took the history up to the period of Ashoka. वॉल्यूम 2 up to समुद्रगुप्ता। वॉल्यूम 2 में अगर आते हैं तो वॉल्यूम 2 समुद्रगुप्त तक लेकर आता है। समुद्रगुप्त तक हिस्ट्री को लेकर आता है। वॉल्यूम 3 अप टू मोहम्मद घोरी। वॉल्यूम 3 में अगर आते हैं तो वॉल्यूम 3 में हिस्ट्री होती है मोहम्मद घोरी की, यहां तक की हिस्ट्री को बताया जाता है। वॉल्यूम 4 अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब। वॉल्यूम 4 में अगर आते हैं तो औरंगजेब के डेथ तक हम आते हैं। अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वाज एज ही न्यू इट। और ये 4 पीरियड अभी तक उन्होंने ठीक से समझा था जहां तक उन्होंने पढ़ा था। द चेंज एविडेंटली हैड अकर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम। लास्ट वॉल्यूम मतलब 5th वॉल्यूम। वॉल्यूम 5th जो आता है उसको ठीक से उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है। वॉल्यूम 5th में उन्हें कुछ चेंजेस मिलना शुरू हो जाते हैं 5वें वॉल्यूम में। रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्रॉम बोथ एंड एंड वर्ड, गंगाधर पंत फाइनली कन्वर्ट्स ऑन द प्रेसिस मोमेंट वेयर हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न। और इसको पढ़ते हुए गंगाधर पंत, प्रोफेसर गायतोंडे एक ऐसे पॉइंट पर आ जाते हैं जहां पर हिस्ट्री ने थोड़ा सा उल्टा टर्न लिया। अभी तक तो पूरी इंडिया का टर्न आ रहा था, ये वॉल्यूम 5th में उन्हें कुछ चेंज मिलता है, कुछ टर्न मिलता है। दैट पेज इन द बुक डिस्क्राइब्स द बैटल ऑफ पानीपत। ये जैसे ही हम 5th में आते हैं इसमें बैटल ऑफ पानीपत की बात की गई। 5th वॉल्यूम में बैटल ऑफ पानीपत में चलते हैं। एंड मेंशन्ड दैट मराठास वोन इट हैंडसमली। और इन्होंने इसका भी जिक्र देखा कि पानीपत के इस बैटल में मराठाओं को एक बड़ी जीत हासिल हुई थी, मराठा योद्धाओं को। अब्दाली वॉज रूटेड एंड ही वॉज चेस्ड बैक टू काबुल। यहां पर अहमद शाह अब्दाली की बात भी की गई है। और उन्होंने ये पढ़ा कि जो पानीपत का युद्ध हुआ, यहां मराठाओं ने अहमद शाह अब्दाली को वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया था। रूटेड बैक, वापस जाने के लिए। चेस्ड बैक टू काबुल बाय द ट्रम्फेंट मराठा आर्मी लेड बाय सदाशिव राव भाऊ। और इसका काम किया था सदाशिव राव भाऊ ने, और अब्दाली को काबुल तक ले जाकर के पहुंचाया। मतलब ऐसा हिस्ट्री में उनको देखने को मिला, काबुल तक। एंड हिज नेफ्यू द यंग विश्वास राव, सदाशिव राव के भतीजे थे विश्वास राव। दोनों ने मिलकर के, ही वॉज नेफ्यू ऑफ सदाशिव राव, तो दोनों ने मिलकर के अहमद शाह अब्दाली को हरा दिया था। यह बात इन्होंने अपनी हिस्ट्री बुक में पढ़ा 5th वॉल्यूम में।
The book did not go into a blow-by-blow account of the battle itself. किताब में पानीपत का जो बैटल था उसके बारे में भी उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था, मतलब जैसे होता ब्लो बाय ब्लो, हर एक पक्ष का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन उस किताब में नहीं मिलता है. Rather, it elaborated in detail its consequences for the power struggle in India. और मेन जो कंसर्न थी इस किताब की वो इस पर था कि किस तरह से इंडिया में पावर स्ट्रगल चल रहा था, कौन इंडिया को शासन करेगा, इस पर ज्यादा आपस में मतभेद चल रहा था, स्ट्रगल चल रहा था, इस पर ज्यादा ध्यान है. गंगाधर पंत रीड थ्रू द अकाउंट एविडली, बड़ी चालाकी बड़ी चुस्ती के साथ गंगाधर पंत पूरे अकाउंट को बड़े करीब से पढ़ रहे थे. द स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज अनमिस्टेकली हिज, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो राइटिंग का तरीका था वो उनका अपना तरीका था. येट ही वॉज रीडिंग द अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम, फिर भी अपनी ही किताब को पहली बार वो पढ़ रहे थे. देखिए ये बात तो सही है, किताब लिखना एक टाइम की देन होती है जहां हम लोग वर्क करते हैं, ढेर सारा हमारे पास नॉलेज हो जाता है, तो हम चाहते हैं उसको हम दूसरों को शेयर करें, ऐसा हो जाता है. लेकिन जब काफ़ी गैप हो जाता है तो बहुत सी ऐसी बातें जो हमने उस किताब में लिखी होती हैं हमारे खुद के दिमाग से स्लिप हो जाती हैं. तो इसलिए हम लोग कभी भी जब अपनी ही किताब पढ़ने बैठ जाएंगे तो उतने ही चाव से उतने ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं जितने इंटरेस्ट से हमने किसी और की किताब को पढ़ा होगा. तो यहाँ पर वो पॉइंट स्पेशली हाईलाइट किया जा रहा है कि किस तरह से प्रोफेसर गायतोंडे अपनी ही किताब को पहली बार बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं. Their victory in the battle was not only a great moral booster in the Marathas. इस पानीपत के युद्ध में मराठाओं को जो जीत मिली थी वो केवल उनके मॉरल बूस्टर के रूप में नहीं थी, but it also established their supremacy in northern India. यहां तक कि इस जीत के बाद मराठाओं की सुप्रीमेसी नॉर्दर्न इंडिया में भी हो गई, उत्तरी भारत में भी हो गई. वैसे तो दक्षिण भारत के थे लेकिन उत्तर भारत में भी उनका प्रभाव हो गया इस बैटल के बाद. ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड बीन वाचिंग दीज डेवलपमेंट्स फ्रॉम द साइडलाइंस, ईस्ट इंडिया कंपनी जो वहां आ चुकी थी वो इस सारी घटना को साइडलाइंस किनारे रहते हुए बड़े आराम से वॉच कर रही थी. ईस्ट इंडिया कंपनी इस सारी घटना को बड़े केयरफुली ये वॉच कर रही थी. ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द मैसेज, उन्होंने इस तरह का संदेश इससे लिया, एंड टेम्परली शेल्व्ड इट्स एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम, और धीरे धीरे इन्होंने अपने एक्सपेंशनिस्ट, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने आप को एक्सपेंड करने का, अपने आप को फैलाने का प्रोग्राम शुरू कर दिया, धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया. फॉर द पेशवास द इमीडिएट रिजल्ट वाज एन इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ भाऊ साहेब, और जहां तक पानीपत के युद्ध के बाद पेशवा की बात थी तो उनके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि फॉर द पेशवास के लिए द इमीडिएट रिजल्ट वाज एन इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ भाऊ साहब इन द सेंस ऑफ सदाशिव राव. इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, प्रभाव बढ़ गया था, और साथ में विश्वास राव, क्योंकि विश्वास राव और सदाशिव राव दोनों ने मिलकर एमएस अब्दाली को हराया था, काबुल तक खदेड़ भेजा था, इसलिए इन दोनों का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था वहाँ. सक्सेस हु इवेंचुअली सक्सीडेड हिज फादर इन 1780 AD, और रिजल्ट ये हुआ कि जब 1780 में 1780 में विश्वास राव के फादर की डेथ होती है तो ही बिकम्स द पेशवा. सदाशिव राव के भतीजे विश्वास राव अपने फादर की डेथ के बाद 1780 में बिकम्स द पेशवा. द ट्रबल मेकर दादा साहेब was
रेलीगेटेड टू द बैकग्राउंड। उस समय जो सबसे बड़ा ट्रबल थे वो थे दादा साहेब। दादा साहेब इनको साइड कर दिया गया, इनको किनारे कर दिया गया बैकग्राउंड में ले जाकर। एंड ही इवेंचुअली रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट पॉलिटिक्स। और फाइनली जब उनको कोई स्पेस नहीं मिल रहा तो दादा साहब ने भी अपने आप को पॉलिटिक्स से रिटायर्ड कर लिया, बाहर कर लिया। टू इट्स डिसमे द ईस्ट इंडिया कंपनी मेट इट्स मैच इन द न्यू मराठा रूलर विश्वास राव। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए थोड़ा सा ये डिसमे का वक्त था, थोड़ा सा उदासी का वक्त था। फिलहाल उन्होंने विश्वास राव से मुलाकात की। ही एंड हिज ब्रदर माधव राव कंबाइंड पॉलिटिकल एक्यूमेन। विश्वास राव और उनके भाई माधव राव एंड विश्वास राव दोनों ने मिल करके एक पॉलिटिकल स्पेसिमेन तैयार किया, उदाहरण तैयार किया। विद वेलर एंड सिस्टमैटिकली एक्सपेंडेड, अपनी वेलर अपने साहस से, और जिसको उन्होंने बड़े ही सिस्टम से, बड़े तरीके से एक्सपेंड किया था। देयर इन्फ्लुएंस ऑल ओवर इंडिया, और उन्होंने अपने पूरे इन्फ्लुएंस को पूरे भारत पर फैला दिया। मतलब दोनों ने मिलकर के, विश्वास राव और उनके भाई माधव राव दोनों ने मिलकर के अपने प्रभाव को पूरे इंडिया पर फैलाकर रख दिया। The company was reduced to pockets of influence near Bombay। अब कंपनी के लिए चिंता का विषय हो गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूर होना पड़ा इन दोनों के बहादुरी और चालाकी के सामने, और वो सिकुड़ कर बॉम्बे के पास ही रह गए, उसके आसपास के क्षेत्र में। कलकत्ता एंड मद्रास जस्ट लाइक इट्स यूरोपियन राइवल्स। कलकत्ता और मद्रास तो खुद भी इनके यूरोपियन राइवल की तरह से, दुश्मन की तरह ही थे। दी पोर्तुगीज एंड दी फ्रेंच, वहां पर भी इनके दुश्मन थे, पोर्तुगीज और फ्रेंच लोग थे। ये भी एक तरह से इनसे हाथ से निकल ही गए थे। फॉर पॉलिटिकल रीजंस द पेशवास केप्ट दी पॉपेट मुगल रिजाइम अलाइव इन दिल्ली। जहां तक पॉलिटिकल रीजन था तो पेशवा लोगों ने खुद आकर के दिल्ली में शासन नहीं किया। उन्होंने क्या किया, मुगल एम्पायर से किसी न किसी को अपना पपेट बना करके, कठपुतली बना करके गद्दी पर बैठाए रखा। इन द 19th century these de facto rulers from Pune were astute enough to recognize the importance of the technical age dawning in Europe। इन द 19th century, जहां तक 19वीं शताब्दी की बात है, धीरे धीरे करके ये जो मराठा रूलर थे वो अब 19वीं शताब्दी में प्रवेश करते हैं, और वो यूरोप में आने वाली जो टेक्निकल शुरुआत थी, मतलब जो नई तकनीकी के शस्त्र आ रहे थे, उनसे अपने आप को अननोन रखे थे, अनजाने थे। दे सेट अप देयर ओन सेंटर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। उन्होंने अपने खुद के साइंस सेंटर बनाए और टेक्नोलॉजी। हियर ईस्ट इंडिया कंपनी सा अनदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस। अब फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल गया कि वो किस तरह से अपने आप को एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इट ऑफर्ड एड एंड एक्सपर्ट्स। इसका काम था कि वो वहां पर एड, उनकी मदद करते थे, प्रचार प्रसार में हेल्प करते थे, और एक्सपर्ट्स भी उपलब्ध कराते थे। दे वर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर सेल्फ सफिशिएंट। पहले तो उनके ऊपर दबाव डाला गया कि आपको पूरी आजादी नहीं होगी, आप सिर्फ यहाँ की जो लोकल सेंटर्स हैं उनको आप सफिशिएंट बनाएंगे, कैपेबल बनाएंगे, सक्षम बनाएंगे। द 20th century brought about further change inspired by the West। हम धीरे धीरे करके 20th century में प्रवेश कर जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट मिड 18th century से हमारा शुरुआत होता है, और अब हम 20th century में आ चुके हैं। 5th वॉल्यूम में हम इतना पढ़ रहे हैं। 20th century में हमारे पास कुछ और भी चीजें सामने आती हैं। फर्दर चेंज इंस्पायर्ड बाय द वेस्ट। वेस्ट की दुनिया से, पश्चिम की दुनिया से कुछ और भी चेंजेस थे जिन्होंने हमारे ऊपर असर डाले। इंडिया मूव्ड टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। धीरे धीरे इंडिया में एक ख्याल शुरू हुआ
कि हम डेमोक्रेसी की ओर जाएंगे, हमारे यहाँ प्रजातंत्र की व्यवस्था होगी। बाय देन द पेशवाज हैड लॉस्ट देयर एंटरप्राइज। अब तक तो पेशवाज ने अपनी पूरे प्रभाव को, कार्य को खो दिया था। एंड दे वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड बॉडीज। धीरे धीरे पेशवाज को हटा करके उनकी जगह पर डेमोक्रेटिक तरीके से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो आकर के शासन करना शुरू कर दिया। दी सल्तनत एट दिल्ली सर्वाइव्ड इवन दिस ट्रांजिशन। ये परिवर्तन हो गया, पेशवा खत्म हो गए, लेकिन जो दिल्ली की सल्तनत थी अभी भी बरकरार थी, इस वक्त भी चल रही थी। लार्जली बिकॉज इट वेल्डेड नो रियल इन्फ्लुएंस। इसका बड़ा कारण यह था कि सही में ये सल्तनत में बैठे हुए शासक तो जरूर थे, लेकिन इनके पास कोई ताकत ही नहीं रह गई थी। तो नाम मात्र के थे, इनके नाम मात्र के बैठे रहने से किसी को कोई नुकसान नहीं था। तो जैसे पेशवा लोगों ने इनको बैठा रखा था, वैसे 20वीं सेंचुरी में धीरे धीरे जब डेमोक्रेसी बढ़ती चली गई तो ये भी बैठे ही थे, इनके रहने न रहने से किसी को नुकसान नहीं था, इसलिए डिस्टर्ब इनको नहीं किया गया। दी शहनशाह ऑफ दिल्ली was no more than a figurehead to rubber stamp। उस समय जो दिल्ली के शहनशाह हो रहे थे 20वीं सेंचुरी के, वो सही बताएं तो कुछ भी नहीं रह गए थे सिवाय रबर स्टैंप के द रिकमेंडेशंस मेड बाय द सेंट्रल पार्लियामेंट। केवल ऐसे होता था कि आपके पास कोई बात जाएगी, आप मोहर लगा देना। आप समझ रहे होंगे जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हैं इस समय, आप समझते हैं ना, हमारे यहाँ की जो प्रेसिडेंट है उनको बहुत अधिकार नहीं दिया गया। वैसे कहने के लिए तो बहुत अधिकार है, हमारे देश के असली जो राजा हैं वो प्रेसिडेंट हैं, बट उनको कई नियमों से बांध दिया गया है। तो उनके पास सही ढंग से जो नियम दिए गए हैं वो इतना है कि उनके पास कोई प्रपोजल अगर पार्लियामेंट भेजता है तो पढ़ें और उसको अपने विवेक के अकॉर्डिंग उस पर सिग्नेचर कर दें, स्टैंप लगा दें, मतलब सिर्फ साइन करने के लिए। ऐसा ही कुछ सल्तनत काल के राजाओं का हुआ था कि उनके पास भी बहुत संसाधन नहीं थे, उनको भी मजबूरी में सिर्फ इतना ही करने को मिला हुआ था कि आप बस स्टैंप लगाओ रिकमेंडेशंस पे, बाकी और कुछ नहीं काम है आपका। As he read on, गंगाधर पंत began to appreciate the India he had seen। जैसे जैसे वो पढ़ते गए, गंगाधर पंत इस बात की तारीफ कर रहे थे कि किस तरह से इंडिया को उन्होंने देखा था, समझा था। It was a country that had not been subjected to slavery for the white man। उनकी नजर से अगर देखिए, आपने देखा ना, उनकी नजर से देखिए तो अहमद शाह अब्दाली भी हार गया, उनकी नजर से देखिए तो मराठाओं का शासन चलता रहा, उनकी नजर से देखिए तो अंग्रेज सिर्फ सबऑर्डिनेट बन के रह गए, अंग्रेजों ने रूल नहीं किया। उनकी इंडिया एक अलग इंडिया थी, उनके परसेप्शन से ईस्ट इंडिया कंपनी के हम कभी गुलाम बने ही नहीं, उनका जो सोच था। इट हैड लर्न टू स्टैंड ऑन इट्स फीट। इंडिया ने अपने खुद कदम पे खड़े होना सीख लिया था। अ न्यू व्हाट सेल्फ रिस्पेक्ट वाज। और इंडिया जानती थी कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है, खुद का सम्मान क्या होता है। ये एक सोच होता है। देखिए, एज अ इंडियन जो हम लोग पढ़ने शुरू करते हैं इतिहास को, तो कई ऐसे बिंदु मिलते हैं जहां हमें लगता है कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो हमारा इतिहास ये होता। अगर आपने कभी हिस्ट्री पढ़ा होगा तो ये फीलिंग आती है, कई जगहों पर आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी से कई बार जब हमारा युद्ध हुआ आमने सामने, तब भी हमने ये बात सोचा। जब 1857 का संग्राम शुरू हुआ तब भी हमने ये सोचा। अहमद शाह अब्दाली से जब युद्ध हो रहा था तब भी हमने ये सोचा। मीन्स हमारा इतिहास भरा पड़ा हुआ है। जब हम इतिहास को पढ़ने बैठते हैं तो ये सोचते हैं अगर ये ना हुआ होता तो आज हमारा इतिहास ये होता। प्रोफेसर गायतोंडे उसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं कि अहमद शाह अब्दाली के बाद हम सबको मालूम है मराठा हार गए थे, सदाशिवराव भी मारे गए थे, विश्वासराव भी वहां मारे गए थे, और वहां से मराठाओं का पतन शुरू हो जाता है। वो पीक था मराठाओं की ताकत का, लेकिन वहां से पतन शुरू हो जाता है और दिल्ली तो नामो निशान ही नहीं रह गया था, अंग्रेजों ने शासन करना शुरू कर दिया था। बट वहीं से इन्होंने एक टर्न ले लिया, समझ रहे ना आप, इन्होंने जो बात किया था ना टर्न, तो जो पॉइंट ऑफ व्यू गायतोंडे ने रखा था वो पॉइंट ऑफ व्यू तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है।
खुद फोर्ब्स की कंपनी में जा रहे हैं, लॉयड की कंपनी में जा रहे हैं, और उनको लगता था कि शायद हमारे देश में तो अंग्रेजों का शासन था ही नहीं, तो ये सब चीजें क्यों हैं, वो समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है यहां पर। फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड फॉर प्योरली कॉमर्शियल रीजन, एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत के बिंदु से और कॉमर्शियल दृष्टिकोण से, इट हैड अलाउड द ब्रिटिश टू रिटेन बॉम्बे, उन्होंने चाहा था कि जो अंग्रेज लोग हैं वो बॉम्बे में ठहरे रहें। रीजन क्या है? कॉमर्शियल, वो चाहते थे कि बॉम्बे में रुके रहे। एज द सोल आउटपोस्ट ऑन द सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि बॉम्बे उस समय सब कॉन्टिनेंट का एकमात्र आउटपोस्ट था। दैट लीज वॉज टू एक्सपायर इन द ईयर 2001, और ये लीज, ये भी संधि, ये भी जो समझौता करके ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे में रखा गया था, उसका जो टाइम है वो 2001 में एक्सपायर कर जाएगा, अकॉर्डिंग टू ट्रेटी ऑफ 1908। 1908 की ट्रेटी के अकॉर्डिंग, 1908 के ट्रेटी के अकॉर्डिंग जो बॉम्बे पर भी इनका थोड़ा सा शासन है, वो 2001 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टाइम है वो एक्सपायर कर जाएगा, ऐसा प्रोफेसर गायतोंडे पढ़ते हैं। गंगाधर पंत कुड नॉट हेल्प कंपेयरिंग द कंट्री। गंगाधर पंत क्योंकि सच्चे इंडियन लग रहे थे तो उनसे रहा नहीं जा रहा था, वो अपनी कंट्री का कंपेरिजन दूसरों के साथ कर रहे थे। न्यू विद व्हाट ही वाज विटनेसिंग अराउंड हिम, और वो अच्छी तरह से जानते थे कि कौन से उदाहरणों को सामने रख करके बात कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ही फेल्ट, लेकिन जिस समय ये सारी बातें वो कह रहे थे, लिख रहे थे, समझ रहे थे, उसी समय कुछ और भी बातें वो महसूस कर रहे थे। दैट हिज इन्वेस्टिगेशंस वर इनकम्प्लीट, उनको लगता था कि जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है, जो भी जांच पड़ताल उन्होंने की है, तलाश की है, वो इनकम्प्लीट है, पूरी नहीं हुई है वो बात। हाउ डिड द मराठास विन इन द बैटल, सवाल यह है कि बैटल में मराठाओं को जीत कैसे मिली थी। टू फाइंड द आंसर ही मस्ट लुक फॉर अकाउंट ऑफ द बैटल इटसेल्फ। अब इस बात को क्लियर करने के लिए कि सच में मराठाओं को जीत कैसे मिली, उस बात को समझने के लिए बैटल के अकाउंट में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो किताब उन्होंने लिखी थी उसमें बैटल का अकाउंट था ही नहीं। युद्ध कैसे हुआ, किस तरह से खत्म हुआ, किसने किसको मारा, इसका कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं था। उन्होंने सीधे कॉन्सिक्वेंस था कि पानीपत का बैटल हुआ और उसके बाद सीधे सीधे मराठा जीत जाते हैं, काबुल में खदेड़ कर आते हैं अहमद शाह अब्दाली को, और इस तरह से मराठाओं का। तो खुद भी अभी इन्वेस्टिगेशन करना है, जांच पड़ताल करना है, परखना है कि सही मायने क्या है। He went through the books and journals before him, उनके पहले जो बुक्स लिखी गई थी और उनके पहले जो जर्नल्स लिखे गए थे, जो उनके आमने सामने रखी हुई थी, उनको पढ़ना शुरू किया। At last among the books he found one that gave him the clue, एक किताब उनको उनमें से मिली जिसमें से थोड़ा बहुत क्लू, थोड़ी बहुत समझ उनको मिली। It was भाऊ साहेब बांची बाकर, ये किताब जो थी वो थी भाऊ साहेब आंची बाकर। भाऊ साहेब आंची बाकर, ये एक्चुअली भाऊ साहब के ऊपर लिखी गई किताब थी और ये उनके सामने एक बुक के रूप में मिलती है। Although he seldom relied on the Bakers for historical evidence, ये बात अलग है कि बाकर्स की बातों पर गायतोंडे साहब बहुत कम रिलाई करते हैं, बहुत कम यकीन करते हैं, बहुत कम भरोसा दिखाते हैं कि उन्होंने सही लिखा है या गलत लिखा है। He found them entertaining to read, लेकिन फिलहाल अभी चूंकि उनके पास
कुछ और नहीं था, वो डिस्क्रिप्शन खोजना चाहते थे कि बैटल में एक्चुअल में क्या हुआ था, तो ये बुक उनको इंटरेस्टिंग लग रही थी। समटाइम्स बरीड इन द ग्राफिक, कभी कभी तो कुछ बातें ग्राफिक्स में भी थी, बट डॉक्टर्ड अकाउंट्स, लेकिन वो अकाउंट्स जो थे उनका सही ढंग से एक्सप्लेनेशन था। ही कुड स्पॉट द जर्म ऑफ ट्रूथ, और वो बड़े बारीकी से उन बातों से ट्रूथ को निकालने की कोशिश कर रहे थे, सच को निकालने की कोशिश कर रहे थे। ही फाउंड वन नाउ इन अ 3 लाइन अकाउंट, 3 लाइन का एक अकाउंट था जो उनको मिलता है, डिस्क्रिप्शन था जो उनको मिलता है। हाउ क्लोज विश्वास राव हैड कम टू बीइंग किल्ड, उसमें उन्होंने पढ़ा कि विश्वास राव की मौत कितना करीब थी। मतलब विश्वास राव जिनको इन्होंने जीत दिला दिया था, वो खुद मौत के बहुत करीब आ गए थे। इसका डिस्क्रिप्शन उसमें लिखा हुआ था, पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन। एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मेले, फिर वो विश्वास राव अपने घोड़े को लेकर के आगे बढ़ते हैं। वेयर एलाइड ट्रूप्स वर फाइटिंग, जहां बड़े सेनाएं लड़ रही थीं। एंड ही अटैक्ड देम, और वो भी उनको अटैक करने लगते हैं। एंड गॉड वॉज मर्सीफुल, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। अ शॉट ब्रश्ड पास्ड हिज ईयर, एक शॉट उनके कान के बगल से होता हुआ गुजरता है। इवन द डिफरेंस ऑफ अ टेल सीसैम वुड हैव लेड टू हिज डेथ, एक तिल मात्र का, तिल मात्र कहते हैं बहुत थोड़ा सा, एक तिल मात्र का भी अगर डिफरेंस रहा होता, इधर के बजाय अगर इधर लग गया होता तो उनकी डेथ हो गई होती, मौत हो गई होती। At 8 o'clock, the librarian politely reminded the professor. 8 o'clock हो गया। 8 बजे लाइब्रेरी के लोगों ने प्रोफेसर को रिमाइंड किया कि प्रोफेसर साहब आप जाइए, आपके घर में भी कुछ होगा, और छोड़िए पढ़ना लिखना यहाँ पर। 8 बजे के आसपास लाइब्रेरियन ने उनको रिमाइंड किया दैट द लाइब्रेरी वॉज क्लोजिंग फॉर द डे, कि आज के दिन अब लाइब्रेरी बंद होने वाली है, आप पढ़ना बंद करिए प्रोफेसर साहब। लुकिंग अराउंड ही नोटिस दैट ही वाज द ओनली रीडर लेफ्ट इन दैट मैग्निफिसेंट हॉल। जब उन्होंने ध्यान दिया तो ध्यान दिया कि हम इतने गहराई में पढ़ रहे थे, पहले वॉल्यूम को पढ़ा, दूसरे वॉल्यूम को पढ़ा, तीसरे वॉल्यूम, चौथे वॉल्यूम, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब वो 5वें वॉल्यूम में आते हैं तो उनको अपनी ही किताब में कई बातें ऐसी लग जाती हैं जिनको उनको लगता है सवाल करना चाहिए, और इसके लिए जब उनको मिलती है भाऊ साहेबांची बाकर तो उसको पढ़ना शुरू करते। उसमें एक डिस्क्रिप्शन था विश्वास राव के क्लोज डेथ के पास, मतलब बहुत नजदीक थे मौत के, उसका डिस्क्रिप्शन था। कोई अब वहां था ही नहीं। आई बेग योर पार्डन सर, मै आई रिक्वेस्ट यू टू कीप दिस बुक्स हियर फॉर माई यूज टुमारो मॉर्निंग। कहते हैं कि माफ करिएगा मैंने ध्यान नहीं दिया आसपास, अगर आपको बुरा न लगे तो ये किताबें आप यहां रखे रहिए ताकि मैं कल आकर इसमें पढ़ सकूं। बाय द वे, व्हेन डू यू ओपन, फिलहाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप बंद कर रहे हैं 8 बजे शाम को, तो ओपन कितने बजे करते हैं, खुलता कितने बजे? 8 o'clock, मतलब ये जो है 8 o'clock इवनिंग है जहां पर क्लोजिंग टाइम है, और फिर 8 o'clock ही है AM में जो टाइम के रूप में ओपनिंग टाइम बता दिया गया कि ये 8 बजे आप सुबह आएंगे तो ओपनिंग टाइम ये है, इतने बजे खुल जाता है। 8 o'clock, so the librarian smiled. Here was the user and the researcher right after his heart. फिलहाल आप जानते हैं कि जो आदमी किसी बात को रिसर्च कर रहा होता है, जो आदमी किसी चीज को यूज करना चाहता है, वो कितनी तसल्ली के साथ चीजों से जुड़ा होता है। सामने एक गंगाधर पंत थे जो एक्चुअल में एक बात को समझना चाहते थे कि इंडिया में गलत क्या हुआ, कैसे इंडिया में अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया। इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली कंट्री जहां पर लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खुद की जान दे दिया करते थे, वो कंट्री कैसे वाइट लोगों की गुलाम बन गई, ये बात उनको समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उनका जो इतिहास था वो इतिहास यहां से अहमद शाह अब्दाली के साथ होने वाले युद्ध से बदल गया था, और वो प्रॉब्लम उनको कॉन्टिन्यूअसली हॉन्ट कर रहा था। तो वो चाहते थे कि इस विषय पर क्लैरिटी आए, ये बात क्लियर हो
कि एक्चुअल में इंडिया के साथ क्या हुआ था और इंडिया से गलती किस जगह पर हो गई, किस बिंदु पर हो गई थी। As the professor left the table, he shoved some notes into his right pocket. जैसे उन्होंने टेबल को छोड़ा, अपने पॉकेट में कुछ उन्होंने नोट्स रखे, एब्सेंट माइंडेडली, पता नहीं कहाँ उनका दिमाग था। He also shoved the markers into his left pocket. और यहाँ तक कि उन्होंने बाकर्स को भी अपने लेफ्ट पॉकेट में ही रख लिया, जो एक्चुअल में वो नहीं करना चाहते थे, वो उनसे हो रहा था। द पॉइंट इज कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, जब आप किसी चीज में इतने मशगूल हो जाते हैं तो आपको ध्यान ही नहीं रहता कि आप सच में कर क्या रहे हैं। प्रोफेसर गायतोंडे का दिमाग पूरी तरह से इसमें लगा हुआ था कि कैसे ऐसा पॉसिबल हुआ कि सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना हाई वैल्यू देने वाली कंट्री इंडिया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलाम कैसे बन गई। उनके इतिहास उनको समझ में नहीं आ रहा था। उनको लगा कि इतिहास में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च करते हुए आदमी का ध्यान हमेशा अपने विषय वस्तु पर होता है। इसीलिए जब वो वहां से उठ भी रहे हैं, वहां से जाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो कई चीजें इधर उधर हो जा रही हैं। दिमाग की बात है, जैसे हमेशा हम लोग देखते हैं कि माइंड अगर आपका कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है तो चीजें आप न चाहते हुए भी कर जाते हैं। और रिसर्चर्स के साथ तो अक्सर होता है। मैंने किसी बड़े ग्रेट स्कॉलर के बारे में सुना था, मुझे याद तो नहीं है किसके बारे, शायद सोक्रेटिस के बारे में मैंने पढ़ा था, कहीं सुना था कि एक बार उनको भी ऐसा ही हुआ था और वो लाइब्रेरी में गए और पढ़ने बैठ गए, पढ़ते ही रह गए। शायद घर के लिए दवा लानी थी और फिर दूसरे तीसरे दिन भूल करके आते हैं तो उनको मालूम चलता है कि वो तो दवा लेने गए थे और लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने लगे थे। तो एक्चुअल में दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द स्कॉलर्स। जब वो किताबों के साथ जुड़ जाते हैं, जब वो पढ़ने लगते हैं, तो उनको आसपास की दुनिया दिखाई नहीं देती है और उस समय वो क्या कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट दे आर लर्निंग दे डोंट अंडरस्टैंड। जो वो पढ़ रहे हैं, जिस विषय पर वो सोच रहे हैं, उसे छोड़कर उनके समझ में कुछ भी नहीं आता है कि एक्चुअल में वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो प्रोफेसर गायतोंडे जो हैं, गंगाधर पंत साहब, उनके साथ भी वैसा ही हो रहा है। उनको भी समझ में भी नहीं आ रहा है कि नोट्स, ये बाकर्स की बुक जो भी थी, वो कैसे उनके पॉकेट में रह जा रही। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट डे विल कंटिन्यू विद द सेम स्टोरी। दैट्स ऑल फ्रॉम मी। थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग। कीप वाचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वर्किंग आउट। थैंक यू वेरी मच।